ठीक, thank you. Good morning all of you. Now today we will start at the lesson 4, linear inequalities. Clear है? Linear equation and linear equalities. In this topic, the first topic is nature of equation. The topic is nature of equation. Let us consider that a1x plus b1y plus c1 equal to 0, this is the first equation, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, this is the second linear equation. These are the two linear equations. Once again, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the two linear equations. So we see that the nature of these equations, now we can say in other words, if these equations represent in the graph which type behavior of these two equations. First, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, means ratios of the coefficient of x is not equal to the ratios of the coefficient of y, clear hai? Then these equation has unique solution. Unique solution. Now we will repeat once again. If the ratios of the coefficient of x is equal to the ratios of the coefficient of y are not equal, then these equation has unique solution. Unique solution means it has a single solution. Clear है? Now we can say in other words, x की वैल्यू और y की वैल्यू कोई ना कोई आएगी सेम. सेम मीन्स a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी. 1 का मतलब नंबर सिंगल वैल्यू से है. क्लियर? सो और इसी इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगी. दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. अर्थात ग्राफ पे अगर इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन एक दूसरे को. वंस अपेन दीज if ratios of the coefficient of x is not equal to the ratios of coefficient of y, then these equation have a unique solution, means single solutions होंगे. x की भी वैल्यू कोई ना कोई आएगी और y की वैल्यू भी कोई ना कोई आएगी. और अगर इन लाइंस को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, these lines are intersecting lines, अर्थात ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. और इसी को हम नेक्स्ट है कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. अर्थात these equation has consistent. कंसिस्टेंट अर्थात ये लाइन जो होती है वो कंसिस्ट लाइन होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. केस सेकेंड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2, means the ratios of coefficient of x is equal to the ratios of coefficient of y but not equal to the ratios of constant terms. Once again, ratios of the coefficient of x is equal to the ratios of coefficient of y but not equal to the ratios of constant term. Then these equations have no solution. No solution. No solution means inconsistent. इसी को अपन inconsistent भी बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट लाइंस. क्लियर है? और अगर इसको अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स these lines are parallel lines. Clear? Once again repeat, if ratios of the coefficient x equal to the ratios of coefficient of y is not equal to the ratios of coefficient of constant term, then these equation have a no solution. It means इनका कोई solution नहीं आएगा.
अर्थात ये इनकंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी। इनकंसिस्टेंट इन द सेंस ऑफ, इनको अगर ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करें, इफ वी हैव रिप्रेजेंट द ग्राफ, देन दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट आता है केस थर्ड। केस थर्ड, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, means the ratios of coefficient of x is equal to the ratios of coefficient of y is equal to the ratios of the constant terms. So these lines या these equation has infinite many solution, infinite many solution. क्लियर है? These lines have infinite many solution. Infinite many solutions means बहुत सारे solutions होंगे, x की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी और y की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? कब आएगी? When the ratios of the coefficient of x is equal to the ratios of coefficient of y is equal to the ratios of constant term. अगर ये तीनों इक्वल हैं, then these equation has a infinite many solutions. Infinite many solutions का मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? x की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, y की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्लियर? और इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? अगर these lines are overlapping lines, these lines are the overlapping lines. क्लियर है? या कोइंसिडेंट लाइंस, जिसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन। क्लियर है? एक लाइन के ऊपर दो लाइंस, तो लाइन पर लाइन आती जाएंगी और ये कहलाता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये थ्री कंडीशंस थी। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 upon a2 is not equal to the b1 upon b2, then these equation have a unique solution. क्लियर है? और लाइंस आर इंटरसेक्टेड एंड दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर। सेकंड में, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बस नॉट इक्वल टू द c1 upon c2, ये रेशियोज इक्वल नहीं है, देन दीज लाइंस आर नो सॉल्यूशन। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी एंड इट इज से दैट द इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? इसी तरह थर्ड में, इफ a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, means ratios of the coefficient of x is equal to the ratios of coefficient of y is equal to the ratios of constant term, then these lines have infinite many solutions, means x and y की different values होंगी और इनको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, these lines have an overlapping lines. ठीक है? now we can say in other words coincident lines. write down. Now today we will start exercise 4.1 question first. On comparing the ratios of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2
find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. The two given equations are 2x minus 3y equal to 8. This is the first, and the second is 4x minus 6y equal to 9. क्लियर है? अब हमें इनको फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ इक्वेशन. हेयर a1 upon a2. What is a1 upon a2? 2 upon 4 means 1 upon 2. b1 upon b2 minus 3 upon minus 6 1 upon 2. c1 upon c2 8 upon 9. a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. Now we see that the a1 upon a2 is equal to the b1 upon b2. Here a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ये कंडीशन कौन सी है? सेकेंड कंडीशन. देयरफॉर दिस इक्वेशन has no solution, means lines are parallel. क्लियर है? बस सिर्फ यही बताना है आपको. ये बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्लियर है? राइट डाउन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी तरह से हैं. इसका मैं फोर्थ पार्ट और करा रहा हूं आपको. फर्स्ट का 4 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है. इसको सॉल्व कीजिए. टेकिंग द एलसीएम 3 या मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाई 3. तो 3 से 4x प्लस 3 2 जा 6y 8 3 जा 24. क्लियर है? इसको इसके नीचे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. ये फर्स्ट बन गई आपकी, ये सेकेंड. हेयर a1 अपॉन a2 4 अपॉन 2 2 अपॉन 1. क्लियर? b1 अपॉन b2 6 अपॉन 3 2 अपॉन 1. and c1 upon c2. What is c1 upon c2? 12 upon 24. Since a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, therefore these equation has infinite many solution. क्लियर? ये आपकी थर्ड कंडीशन है. रेशोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले एलसीएम लीजिए 3 से या 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो 4x 3 2 जा 6 8 3 जा 24. ये फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गई है. सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख लीजिए. तो 4 अपॉन 2 a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2, 6 अपॉन 3 मीन्स 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 24 अपॉन 12 इक्वल टू 2. क्लियर है? अब देखिए ये रेशो, ये और ये सारे इक्वल है. a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. और ये कंडीशन है आपकी थर्ड कंडीशन, जिसका रिजल्ट था अगर ये कंडीशन लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन दीज इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. तो इनका जो नेचर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा.
नाउ वी कैन से ओवरलैपिंग लाइन्स होंगी और कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप करेंगे, थर्ड और सेकंड पार्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड टेल इट्स अ नेचर। इनका नेचर भी बताना है और ग्राफिकली इनको सॉल्व की करना है। ये हम लोग पिछली क्लासेस में 9th में भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इनकी टेबल्स बनानी है और उसी तरह इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 3 और सेकंड है आपका 3x - 2y = 4। इसमें एक तो आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसके नेचर भी बताने हैं। तो अगर नेचर के लिए अगर हम आप देखें पहले, तो देखिए इसको अगर इसके नीचे लिखते हैं 3x - 2y = 4। तो आइए हेयर A1/A2 what is 1/3, B1/B2 1/-2 and C1/C2 3/4। A1/A2 the coefficient of this is 1, 1/3, coefficient of this is 1, 1/-2 and the ratios of this 3/4। अब यहाँ ये इक्वल नहीं है। क्लियर है? सेंस A1/A2 is not equal to B1/B2 means this equation has यूनिक सॉल्यूशन। तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्लियर है? ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर वही रहेगा, दोनों की टेबल्स बनानी है। करिए, पहले राउट डाउन कीजिए। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट दिस इक्वेशन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ y। तो इट कैन बी रिटन एज y = 3 - x। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए। अब इसकी टेबल बनाइए। ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट we get x y x y। We are giving the different values of x and find the corresponding values of y. First we have write down the place of x is equal to 0। x के प्लेस पर 0 वैल्यूज लीजिए। 3 - 0 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आई है? 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 0 और 3। इफ वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ x = 1 तो 3 - 1 2, x की जगह 1 तो हेयर इज 2 1 2। इन द प्लेस ऑफ x = 2 तो 3 - 2 = 1 एंड द कोऑर्डिनेट इज 2 1। इफ वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ x = 3, 3 means 3 - 3 means 0, the coordinate is 3 0। clear है? Once again we are giving the different values of x and find the corresponding values of y। first we are giving the value of x = 0, 3 - 0 = 3। now we are giving the next value x = 1, 3 - 1 = 2। we are giving the next value 2, 3 - 2 = 1। we are giving the next value 3, 3 - 3 =
0 and these are the coordinate. Clear? Like the same आइए देखिए माइनस का 2y इक्वल टू 4, ये 3x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया. इज इट क्लियर? देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 2. क्लियर? अब माइनस 2 को से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 से, तो इसमें से कॉमन लेके कैंसिल करें तो हेयर इज 3x माइनस 4 अपॉन 2. क्लियर? माइनस यहाँ से कॉमन लिया है, ऊपर से माइनस कॉमन लेके ये बन गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और माइनस से नीचे वाला कैंसिल हो गया. क्लियर है? अब इसकी भी हमें टेबल उसी तरह से बनानी है. XY. क्लियर है? फर्स्ट वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. क्लियर है? वी आर गिविंग द x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 0. नाउ यू सी y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2. दिस इंटू दिस 0 माइनस 4 अपॉन 2. माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स माइनस 2. Clear? Any problem? And the coordinate is 0 minus 2. Clear है? Next we are giving the next value x equal to 2. x के प्लेस पर 2 यूज कीजिए. इसमें 3 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो 3 2 जा 6. 6 में से 4 माइनस कीजिए, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1. क्लियर? x के प्लेस पर 2 दिया, 1 आ गया. देन द कोऑर्डिनेट इज 2 1. वंस अगेन रिपीट. फर्स्ट वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. 0 किया तो दिस इंटू दिस 0. क्लियर है? माइनस 4 अपॉन 2, माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 माइनस का 2. अब वी आर गिविंग द नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 2. 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, 2 अपॉन 2 1. क्लियर है? नेक्स्ट यू आर गिविंग द x इक्वल टू 4. तो देखिए 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, 12 में से 4 माइनस कीजिए, 12 में से 4 8, 8 अपॉन 2 4. देन द कोऑर्डिनेट इज 4 4. एनी प्रॉब्लम? वंस अगेन रिपीट. क्लियर है? x के प्लेस पर 3. ठीक है ना? 3 सॉरी 4, 4 3 जा 12, 12 में से 4 माइनस कीजिए 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए 4. नेक्स्ट. क्लियर है? नेक्स्ट वैल्यूज अगर हम देते हैं क्या, 4 के प्लेस पर 6. ठीक है? तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 में से 4 माइनस कीजिए 14, 14 इज डिवाइडेड बाई 2 7. दीज आर द 2 टेबल्स. अब इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है. फर्स्ट यू विल राइट डाउन, देन वी विल प्लॉट इन अ ग्राफ एंड फाइंड द सॉल्यूशंस. In left hand side this is Cartesian product 0 x x dash. This is the imaginary axis y and y dash. Clear है? This is say that the abscissa and that is known as the ordinate.
+1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7. Represent into a graph. First coordinate is 0, 3. X पर 0, y पर 3. तो x पर 0, y पर 3. You will put here is dot and draw the circle. 0, 3. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 2, 1. 3, 0. 3, 0. X पर 3, y पर 0. Once again repeat. X equal to 0, y equal to 3. X equal to 0, y equal to 3. Next, x equal to 1, y equal to 2. X equal to 1, y equal to 2. X equal to 2, y equal to 1. X equal to 2, y equal to 1. And 3, 0. इसको ज्वाइन कीजिए आप स्केल से. And write the name of this equation is, क्या नेम था इसका? x plus y, x plus y equal to 3. x plus y equal to 3. ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी. अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कीजिए. 0 - 2. तो x के प्लेस पर 0 - 2. 2, 1. x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 1. दिस इज रिपीटेड. 4, 4. ये 4 और ये आपका y पर 4. एंड नेक्स्ट 6, 7. 6 और 7. ज्वाइन कीजिए इनको. The name of this line is 3x minus 2y equal to 4. 3x minus 2y equal to 4. ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी. क्लियर है? अब ये यहाँ पर इस लाइन पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है. इससे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, y पर परपेंडिकुलर डालिए. क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1. These are the solution set. Clear? Any problem? Write down. ये सेकंड क्वेश्चन के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह से हैं. क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, सेम. फोर्थ को छोड़ दीजिए. फोर्थ क्वेश्चन 3 में देखिए. क्वेश्चन 3 में भी सिर्फ इसी तरह से करना है. और इसमें इन्होंने जो एक्स्ट्रा पूछा है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर कहाँ मीट करेगी? तो सिर्फ इसमें ये बताना है वाई एक्सिस पर ये लाइन कहाँ मीट कर रही है. y इक्वल टू 1 पर. क्लियर? सिर्फ इतना सा. ये आंसर निकालने के बाद सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा बतानी है कि ये y लाइन पर, y एक्सिस पर कहाँ मीट कर रही है. y इक्वल टू 1. अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फर्स्ट टू 3 तक के, ये आपको करके देखने हैं. सेम क्वेश्चन है. Clear? Any problem? Once again repeat. First we will draw the tables and draw in a graph.
ग्राफ पर व्हेन दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज से दैट द सॉल्यूशन सेट। ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ये इनका सॉल्यूशन होगा, मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से एक्स वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लगाएंगे, वो एक्स की वैल्यूज आएगी, जो वाई पर परपेंडिकुलर डालेंगे वो वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी। और दोनों लाइंस एक्सिस की या वाई एक्सिस को कहाँ मीट करेंगी, वो अपन अगर वाई की पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डालिए, एक्स की पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डालिए। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में नेचर ऑफ इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम है जिसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन है। इनको करने के बाद नेक्स्ट टर्न पे हम शुरू करेंगे इनइक्वलिटीज, एरिया इक्वेशंस का एरिया और रीजन्स इनइक्वलिटीज का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।